Okay, hello friends, how are you all? So, last time what we have done valence bond theory, the postulate of, we have seen postulate of valence bond theory, what valence bond theory says, how to find out the different things of compound, coordination compound, different thing means what, magnetic property of compound, optical property of compound, then optical property does not explain by VBT, hybridization, how to find out the hybridization of compound, right? Complex is inner or outer complex, how to find out that. We have seen last lecture and we have taken one example over there, right? Today we will continue that lecture, or we will continue VBT by using different types of examples, right? So let's start with octahedral complexes. Right now we will see octahedral complexes. Last time we have already seen, right? So now we will take second example of octahedral complex, that is what, hexafluorocobalt 3 complex ion. Cobalt 3 ion. The name, IUPAC name of this compound is hexafluorocobalt 3 ion. So let's start. मैंने आपके सामने क्या किया? I have given the points what we have to follow in this solution. Right now, first we have to find out the oxidation state of the cobalt ion. Cobalt का हम लोग क्या करना है? Oxidation state find out करना है. So how to find out cobalt oxidation state over here? The cobalt is plus, the oxidation state of cobalt is +3. If you see, I will solve it. X, right? What is the valency of flowing? -1 multiplied by 6 is equal to charge. Charge is equal to -6, right? So what I will get? X is equal to -6. Go over there. It will come +6, and this -3 as it is. What I will get? I will get +3. So oxidation state of cobalt is what? Oxidation state of cobalt is equal to +3, right? Second, we have to write valence shell electronic configuration of cobalt. Cobalt का valence shell electronic configuration लिखना है. Let's start. Cobalt, the electronic configuration of cobalt, normal cobalt +3 का लिखना है हम लोग को. But what is the valence shell electronic configuration of what? Normal cobalt, what? Argon 3D. मैंने लास्ट टाइम लिखा था आपको. साइंस टीचर विनीता, कृपलानी, मन, फेकू, निखिल की कजिन है, राइट? सो इससे मालूम पड़ता है cobalt is at 7, right now? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, right now? So atomic number of cobalt is what? 27. What is atomic number of cobalt? 27. So 27, 4s2, 4p0, right? This is the outermost or valence shell electronic configuration of cobalt. Now we have to find out the valence shell electronic configuration of cobalt +3 ion. So 3 +3 हम लोग को लाना है, तो +3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रॉन कितने निकालने का? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का. तो आई विल डू AR, राइट? हमेशा मैंने लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट electron will be removed from first from s orbital, then p orbital, then d orbital. So first I will remove from s orbital, so it will come as 4s0, 4p0. 2 यहाँ से कम हुआ, एंड यहाँ पे क्या होगा? 3d6, राइट? क्या होगा? 3d6. यस, 3 निकाल दिया. क्लियर है हम लोगों को? तो अब अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले लेकिन मिटा के आपको समझाता हूँ, फिर तो लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू. So अगर मैं इसका ग्राउंड स्टेट लिखता हूँ, what I will get? ग्राउंड स्टेट. तो d 3d orbital, 5 orbitals are there, we know that, right? 6 electron, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? 4s, there is no electron, so it will be empty, and 4p, there is no electron, it will be empty only. Now what third one was effect of ligand. We have to explain effect of ligand. Ligand का effect हम लोग को explain करना है. Last time already I have told you that if the ligand is strong, it will pair the electron up. If ligand is weak, it will not pair the electron. right ना? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? pair up नहीं होगा. अगर ये strong ligand है तो क्या होगा? ये इसको यहाँ पर भेजेगा, बराबर?
उसको पैर अप करने की कोशिश करवाएगा। पर अगर लिगैंड वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पैर अप करने की कोशिश नहीं कराएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लिगैंड क्या है, वीक है। मैंने आपको बोला था हैलोजन जितने हैं सब क्या है होते हैं, वीक लिगैंड के अंदर आते हैं। तो वीक लिगैंड है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पैर अप नहीं करवाएगा, इट विल रिमेन एज इट इज। तो इफेक्ट ऑफ लिगैंड में देयर इज नो इफेक्ट, राइट ना, नो इफेक्ट लिखने का, नो इफेक्ट बिकॉज ligand is weak field ligand. Ligand is weak field, it will not pair up, right ना? तो pair up नहीं होगा, तो what I will get? I will get same as previous one, right? यहाँ पर क्या होगा, single and this one pair up and this will remain as it is, what? Empty, right? This is our 3D, 4s, 4p, 4s and 4p. Got it, beta? Now, how many? The whole point is what we have to find out how many orbitals are required over here of metal. Metal के कितने ऑर्बिटल लगेंगे हम लोग को देखना है। तो जितने लिगैंड रहेंगे उतने ऑर्बिटल लगते हैं, मैंने बता चुका हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया था वैकेंट ऑर्बिटल मेटल का और पैड ऑर्बिटल लिगैंड का ओवरलैप करता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। तो कितने ऑर्बिटल लगेंगे, जितने ऑर्बिटल हमारे मेटल के क्या रहेंगे, हमारे मेटल रहे, सॉरी लिगैंड रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये मैं लिखता हूँ, पहले ऑर्बिटल लिखता हूँ जो पहले था हमारा, ये मेरा लेट सिंगल पैर, ये क्या है 3D है, 4s हमारा एम्प्टी है, 4p भी एम्प्टी है, और D की बात करते हैं D 4D 5, राइट, 4s 4p and 4d. If you see over here, आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो देखो यहाँ पे लिगैंड कितने हैं, जरा 6 लिगैंड, 6 लिगैंड है। ऑब्वियसली यहाँ पर से 6 ऑर्बिटल जो है यूज होंगे, 6 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 और 6 ऑर्बिटल यहाँ पर यूज होंगे। तो ये 6 ऑर्बिटल जो है हमारे हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। तो वही लिखेगा, मेटल के 6 वैकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर होंगे बिकॉज देयर आर 6 लिगैंड्स। नाउ हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब ये वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, लेकिन हमने क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, 6 लिगैंड, 6 एक लिगैंड यहाँ देगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, हम ऐसा करके 6 ऑर्बिटल में 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसके जरिए, 6 लिगैंड के जरिए। सो व्हाट आई विल गेट आफ्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल, आई विल गेट ये इज हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, आफ्टर ओवरलैपिंग आई विल गेट व्हाट, ये पैर वैसे रहेगा, ये इसको मैंने कुछ नहीं किया, मैं लिगैंड कहाँ से भेजूंगा, यहाँ से भेजने वाला है, यहाँ पे पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पहला लिगैंड का आया, दूसरे लिगैंड का पैर, तीसरे लिगैंड का पैर, चौथे लिगैंड का पैर आया, राइट ना, पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये 5वें लिगैंड का पैर और 6वें लिगैंड का पैर। तो दिस इज आवर हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या है, हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, समझा, ये हाइब्रिडाइज किए इन्होंने, इसका मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल और लिगैंड का पैर ऑर्बिटल हाइब्रिड किए। तो कौन सा इन्वॉल्व हुआ यहाँ पे बेटा, एस पी के 3 मतलब sp3 और डी के 2 sp3d2। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या आएगा, sp3d2, क्या आएगा, sp3d2। नेक्स्ट हम लोग लिखना है इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है, ये बताना है। तो यहाँ पर इनर है क्या आउटर है बेटा, मैंने आपको बताया डी अगर राइट साइड पर आएगा मतलब बाहर की तरफ आएगा, डी इस तरफ है, डी ऑर्बिटल का यूज जो है हुआ है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, वो यहाँ पे से हुआ है, तो उसको बोलेगा आउटर कॉम्प्लेक्स। अगर डी का यहाँ का यूज होगा तो उसको बोलेगा इनर, बिकॉज यहाँ का यूज हो रहा है, जिसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर कॉम्प्लेक्स। और यू कैन से इसका एक और नाम है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या आएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इजी है बेटा। और लास्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर हम लोग यहाँ से पूरा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, राइट, देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना। मैंने आपको बोलता अनपेयर्ड रहेगा तो क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा, और पेयर्ड रहेगा तो क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक। बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है इसलिए ये क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहेगा। समझ में आया बेटा, बहुत ईजी था, एकदम ईजी है। आप लोगों को डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉपी करो बेटा, आप वीडियो को रुका के कॉपी कर सकते हैं, अगर मैंने इसको मिटा दिया तो फास्ट वाला, ठीक है, कॉपी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, मैं मिटा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जगह आप देखेंगे, कौन सा कॉम्प्लेक्स देखेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहाइड्रल
कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? टेट्रा कॉम्प्लेक्स हम लोग को करना है निकल ए दे रहा हूं मैं यहाँ पर, निकल टेट्राक्लोरो Cl4 है ना, ये -2 आ जाएगा, इसको ऐसा लिखते बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्या है? टेट्राक्लोरो निकल 2 कॉम्प्लेक्स, क्या निकालेंगे हम लोग? निकल 2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैं आपको ये मिटा देता हूँ, वापस से करना पड़ेगा हम लोग को, राइट। नया काम है तो वापस से पॉइंट वही लिखता हूँ मैं, पॉइंट हम लोग को यही फॉलो करना है, राइट। इसको भी मिटा दिया, ओके, इसको भी मिटा देते हैं हम लोग। पढ़ाई स्टार्ट कर दो हाँ बेटा। आउटर कॉम्प्लेक्स इनर कॉम्प्लेक्स हम लोग को पता करना पड़ेगा, बाद में देखेंगे हम लोग। इसको मिटा दिया। हाइब्रिड फिजिक्स क्या आएगा आगे पता नहीं हम लोग को। इलेक्ट्रॉन पेयर है या अनपेयर है, इलेक्ट्रॉन साथ मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ देता हूँ, और मैग्नेटिक पैरा है क्या है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। रेडी है हमारा फॉर्मेट रेडी है, हम लोग को बस फिलअप करना है कि क्या क्या हम लोग को करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑक्सीडेशन नंबर। वी हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल ओवर हियर। अब मैंने आपको सिखा दिया और इसके मेथड से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर और निकल इज इक्वल टू क्या है? +2 है, क्या है? +2 है ना। -1 इंटू 4 -4 आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 -2 कितना आएगा? +2 हो जाएगा। डायरेक्ट करना सीखो बेटा। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखना है? निकल +2 का लिखना है। किसका लिखना है? निकल +2 का लिखना है। तो निकल का अगर आप देखेंगे, निकल राइट ना, निकल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन, राइट, आर्गन 3D8। निकल साइंस टीचर विनीता कृपलानी मनफेकू निखिल की कजिन है। निखिल 28 पे आ रहा है ना, तो 28 मतलब 8 पे आ रहा है, 28 इसका एटॉमिक नंबर रहेगा, तो ये 3D8 हो जाएगा। और 4s कितना हो जाएगा? 4s2 4p0 है ना, मेरे को यहाँ तक चाहिए, 4p0 तक चाहिए। ले लिया। अब क्या करना है मेरे को? निकल +2 का निकालना, तो निकल +2 का क्या आ जाएगा बेटा? मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन निकालना। पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, हम लोग को मालूम है। तो व्हाट आई विल गेट? आर्गन, राइट, 3D8 4s0 एंड 4p0 है ना। मैंने 3D में से निकाला ही क्योंकि 2 ही निकालना है, तो 2 ऐसे निकल चुके हैं, तो 3D को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। सो अगर मैं इसके ग्राउंड स्टेट लिखूंगा, व्हाट आई विल गेट फ्रॉम दिस? ये मेरा d ऑर्बिटल है, राइट, d ऑर्बिटल है, ऐसा बड़ा कर देता हूँ, इट विल बी बेटर, राइट। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन भरने का? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको बताया लेवल के अंदर कि यहाँ पर हम लोग क्या करना है? हमेशा सिंगल पहले फिल करना है, उसके बाद पैर अप करना है। 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली रहने दो। p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली रहने दो, राइट ना, इट विल बी एम्प्टी ओनली। तो ये दिस इज 3D, दिस इज आवर 4s, दिस इज आवर 4p, राइट। नाउ इफेक्ट ऑफ लिगैंड, लिगैंड इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? Cl है, Cl अगेन हेलोजन है, हेलोजन को वीक फील्ड होते हैं, तो इट डज नॉट इफेक्ट ऑन द this right now electron will not pair up because ligand is weak field ligand, right now, so it will remain as it is. What I will get from this? I will get like this 3D column, 3D, this pair as it is. I am writing as it is because does not, ligand is weak field ligand, because of that it will not affect our orbitals, electrons, right now. समझा? लिगैंड वीक होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को पैर अप नहीं करवा रहा है। लिगैंड अगर वीक नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन को अगर स्ट्रॉन्ग होता तो इलेक्ट्रॉन को पैर अप कराता, वो आगे की तरफ भेजता था और जगह खाली करवाता था। आपको बता चुका हूँ, तो इसको ऐसे ही रखो। नाउ वैकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर कितने होंगे? तो जितने लिगैंड है उतने वैकेंट ऑर्बिटल रिक्वायर होंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं, हम लोग देखते हैं कितने कौन कौन से लिखने वाले हैं हम लोग को। तो ये डी वाला कॉलम ऐसे ही भरता हूँ मैं, राइट। 2 2 4 2 6 था और इसको वैसे की वैसे रखा। ये दिस इज अवर 3D ऑर्बिटल। 4s खाली है हमारा और 4p खाली है, 4s एंड 4p। डी लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज हम लोग को 4 लिगेंड है वहां पर। हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर? 4 लिगेंड्स आर देयर, सो इट विल रिक्वायर 4 एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये नहीं जाएगा। लिगैंड नवाब लोग होते हैं तो उनको क्या चाहिए? घर खाली चाहिए, शेयर अप करने की उनको आदत नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करेंगे। तो यानी कोई चीज को शेयर नहीं करेंगे तो उनको खाली घर चाहिए, तो यहाँ से एक्टिफाई करेंगे। अगर उनको पैर अप नहीं करवा पाएंगे
लिगेंड वीक फील्ड है तो भी उनके नवाबी नहीं आती है, और वो नवाबी रहेंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पैरअप नहीं करवा पा रहे तो वो आगे के घर खाली वाले घर लेंगे। कितने घर चाहिए, 4 लिगेंड है, इससे 4 घर चाहिए, तो इट विल रिक्वायर 4 एम्प्टी या वैकेंट ऑर्बिटल्स, 4 वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ व्हाट, मेटल। नाउ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑब्वियसली वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पैर आएगा किसका, लिगेंड का, लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पैर इस पे देगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इस पर 4 है, तो चारों पे 2 इलेक्ट्रॉन, पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हर लिगेंड के पास एक पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो चारों में इलेक्ट्रॉन पैर फिल होगा, और फिल होने के लिए क्या होगा हमारा, कुछ ऐसा आएगा। कैसा आएगा बेटा, इसको तो वैसे ही इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, ये पैर, ये पैर, ये पैर, सिंगल सिंगल रेडी, वैसे क्योंकि उसमें पैरअप नहीं हो रहा है। पैरअप किसमें हो रहा है, एस में, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आया पहले लिगेंड का, लिगेंड 4 आया बेटा, ये सेकेंड लिगेंड का पैर आया, थर्ड लिगेंड का पैर आया, चौथा लिगेंड पैर आया, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या है मेरे, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाँ है ना। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, यहाँ से एस इन्वॉल्व हुआ, ये इन्वॉल्व हुआ ना, एस और पी के 3, तो क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, क्या है, sp3। यहाँ पे आप ज्योमेट्री भी लिख सकते हैं, आपको एक बॉक्स में दिया नहीं, मैं एक बॉक्स भी क्या मैंने न्यू बुक के अंदर बॉक्स ज्योमेट्री के बारे में सीक्रेट नहीं किया, बट अगर ज्योमेट्री पूछा है तो मैं आपको एक टेबल दे दूंगा एट द एंड ऑफ द दिस लेक्चर, तो वो टेबल के जरिए आप बता सकते हैं कि ज्योमेट्री का एक पॉइंट एक्स्ट्रा 9 पॉइंट डाल सकते हैं कि ज्योमेट्री क्या रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन का एक यूज करने का, और उसकी ज्योमेट्री जैसे sp3 की टेट्राहेड्रल होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो sp3 की टेट्राहेड्रल आपको लिखना रहेगा, समझा हम लोगों को। टेट्राहेड्रल आपके सामने ही कॉम्प्लेक्स नाम ही दे रहा है ना, टेट्राहेड्रल, तो ज्योमेट्री जो है हम लोगों को बॉक्स के जरिए मालूम पड़ेगी। कैसे मालूम पड़ेगी, एक बॉक्स में आपको दूंगा, उसके जरिए हम लोग डायरेक्टली, अगर ये नहीं दिए डायरेक्टली कंपाउंड देगा तो आप ज्योमेट्री भी इसमें एंट्री कर सकते हैं पॉइंट के। उसके बाद आउटर है क्या, इनर कॉम्प्लेक्स है, यस आउटर है या इनर कॉम्प्लेक्स है बेटा, बताओ। तो यहाँ पर डी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर है, डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये आउटर इनर कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगा, ये क्या होगा, आउटर और इनर कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगा, ठीक है। अब आती है बारी किसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे यहाँ पर, देखो सबके सब पैड है, नहीं यहाँ पे अनपैड आ रहा है, अनपैड इलेक्ट्रॉन्स आर अनपैड, इलेक्ट्रॉन्स आर अनपैड, देयरफॉर ये क्या है हमारा, पैड नहीं है, अनपैड तो पैरामैग्नेटिक है, अनपैड है तो क्या है पैरामैग्नेटिक रहेगा, समझा बेटा, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, लिख लो बेटा जल्दी से। ओके, आपकी बुक में ना ऐसा कुछ कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया तो आप बना सकते हैं, खाली बना के दिखाना लास्ट में। तो क्या करेंगे, निकल लिया मैंने 4 क्लोरीन, तो 4 क्लोरीन लगा दिया, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर क्या है 2 माइनस रहेगा, टेट्राहेड्रल फॉर्म में बनाएंगे हम लोग। टेट्राहेड्रल है तो इसको ऐसा मत बनाओ, स्क्वायर प्लेन हो जाएगा, बेटर रहेगा, इसको ऐसा बनाओ, 1 2 3 और 4, टेट्राहेड्रल ऐसा होना है, तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में ऐसा बनाओ, और ये 2 माइनस 4 वैसे ऐसा दिया हुआ है, तो आपकी बुक में मिल जाएगा, इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ, आप बुक में से देख के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, ठीक है। चलो लास्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, एक और क्या है हमारा, कौन सा वाला है, CN4 निकल, CN4 है 2 माइनस, राइट। ये जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर है, मैं टेबल आपको इसका एक स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, टेबल आपको दे दूंगा, डोंट वरी, टेबल जो है वो मैं दे दूंगा आपको, वीडियो में लास्ट में लगा दूंगा, बस आपको उसमें क्या किया है, हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, और सामने क्या किया है, उसकी ज्योमेट्री दी हुई है, याद करना है, sp3 का ये है, इसके ये है, इसका ये याद करना है, एग्जाम में अगर पूछा तो लिखना है डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन निकाल के, ठीक है। मगर हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग को यही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं निकल, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ आपस में, निकल तो है वैसी वैसी, चलो स्टार्ट करते हैं, शायद अगर सेम रहेगा तो हम लोगों को ज़्यादा मिटाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। तो पहला यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा निकल का, अगर मैं इसका वैलेंसी निकालूंगा तो इधर भी +2 ही स्टेट में, कौन सा स्टेट में, +2, निकल कौन सा स्टेट में, +2 स्टेट में ही है। क्यों +2 में, -1 होता है CN, -1 × 3 4, -4 वहां जाएगा तो +4 +4 -2 आएगा +2, समझा हम लोग को।
बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालना है, +2 का निकालना है, निकल +2 का ही निकालना है। तो निकल का 0 स्टेट में ये है, अभी दिखा दिया, +2 स्टेट में ये होता है, उसका ग्राउंड स्टेट यही होगा, सेम टू सेम रहेगा, और चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट ना। अब इफेक्ट ऑफ लिगेंड, यस इफेक्ट होगा, इफेक्ट राइट ना, एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऐसा लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देयरफॉर इट विल कॉज इफेक्ट, इफेक्ट कॉज करेगा, क्या करेगा, इट विल पैर अप द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को पैर अप करा देगा। पैर अप मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर देगा, ये जो यहाँ से यहाँ जंप करेगा, इसका मतलब ये जो यहाँ से हटकर यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से हटकर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है लोगों को। अब मेरे को कैसा कुछ है, मेरे पास ये अवेलेबल, ये ऐसा ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल है, बराबर। अब क्या होगा, तो मेरे को लिगेंड कितने, 4 लिगेंड है, 4 ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट है। तो लिगेंड यहाँ से इन्वॉल्व होगा नहीं बेटा, उसको जल्दी, उसको मार्केट के पास का घर चाहिए, नजदीक वाला घर चाहिए। तो ये नजदीक वाले के, ये नजदीक वाले यहाँ से, ये नजदीक वाले, तो लिगेंड जो है यहाँ से फिलअप करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से जो ऑर्बिटल कितने लगेंगे, 4 ऑर्बिटल लगने वाले, 4 लिगेंड है बोल के, तो 1 2 3 4, समझा आप लोगों, कितने ऑर्बिटल लगेंगे, 4 लगने वाले, तो 4 लिगेंड ऑर्बिटल लगेंगे, एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। अब फिलअप जो होगा हमारा ये ऐसा था, इसको छोड़ दो, इसको मिटा देता हूं मैं। फिलअप करना है हम लोग को, बराबर है, फिलअप करना है, तो कितने लिगेंड, 4 लिगेंड, 4 लिगेंड, 4 लोन पैर देंगे। पहला लोन पे यहाँ पे फिलअप होगा, दूसरा लोन पे यहाँ पे फिलअप होगा, तीसरा यहाँ पर, और चौथा यहाँ पर। तो मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से, यहाँ से स्टार्ट हो रहे, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे यहाँ तक, तो दीज आर माय हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझा हम लोग को। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, डी से स्टार्ट हो रहा है, तो DsP3 क्या हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, DsP3 हो जाएगा। अब DsP2 हो जाएगा, सॉरी यार, DS और P के 2 है, तो DsP2 हो जाएगा। बिकॉज जो DsP2 है, DsP2 को टेबल में आप देखेंगे तो उसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, स्क्वायर प्लेनार होगी, क्या होगी, स्क्वायर प्लेनार। समझा हम लोगों को, वो तो पहले ही लिख दिया मैंने आपके सामने। अब ये इनर है क्या आउटर कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज D इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये क्या है, इनर कॉम्प्लेक्स है, क्या है, इनर है, और यू कैन से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है सबके सब पैड दिख रहे, सब पैड है, इलेक्ट्रॉन्स आर पैड, इलेक्ट्रॉन्स आर पैड, देयरफॉर ये क्या है, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। समझा हम लोगों को, बहुत ही इजी है बेटा, एकदम ही इजी है मेरे ख्याल से। आपको बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, और आपको ये सब लिखना रहेगा। 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछो, कॉपी करो, लिमिटेशन बाकी VBT की वो देखेंगे और रुक जाएंगे, ठीक है। ओके, सो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था लास्ट पार्ट है, मगर ये पार्ट जो है बिकॉज थोड़ा रह गया था, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर क्या है, लिमिटेशंस ऑफ VBT, विलियम्स बॉन्ड थ्योरी लिमिटेशन है। इसके बाद CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि ओमिटेड है, रिड्यूस पार्ट से रिड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर लिमिटेशंस में अगर देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारी चीजें हम लोग को बताई, बट कुछ चीजें जो है वो कुछ सही से नहीं बताई, और कुछ चीज बताई वो बताई ही नहीं। कुछ चीजें हैं, सम थिंग्स आर देयर विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय VBT, वो हम लोग को VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया, और कुछ चीजें बताई मगर वो सही नहीं बताई। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, कलर की बात करेंगे, कलर VBT मतलब लिनियस पॉलिंग ने एक्सप्लेन नहीं किया, VBT थ्योरी में हम लोग कलर नहीं मालूम पड़ता है कलर कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा। सेकेंड, द स्ट्रक्चर जो VBT से हम लोग को मिला है, राइट ना, एग्जाम्पल खासकर बात करूंगा तो स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, तो उसमें कंफ्यूजन, मतलब एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर हम लोग निकालेंगे ना, तो प्रैक्टिकली हम लोग को अलग मिलता है, क्या मिलता है, अलग स्ट्रक्चर मिलता है। और VBT जो है उसको जो दिया है, VBT जो प्रेडिक्ट करती है, VBT जो हम लोग को प्रेडिक्ट करती है स्ट्रक्चर, वो अलग आता है। समझे हम लोग को, समझे एग्जाम्पल एक्स कंपाउंड है जिसका उसने स्क्वायर प्लेनर बोला है, बट प्रैक्टिकली वो कुछ और आ जाएगा, वो आ जाएगा टेट्राहेड्रल। इसमें एक्सचेंज हो जाता है, कंफ्यूजन होता है। जहाँ उसने स्क्वायर प्लेनर बोला उसको वो टेट्राहेड्रल आएगा, और टेट्राहेड्रल होगा स्क्वायर प्लेनर आता है। खासकर यही कंपाउंड में लोग एक्सचेंज कर रहा है, कंफ्यूजन हुआ है, रॉन्ग हुआ है। तो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर सही से एक्सप्लेन VBT के जरिए नहीं किया गया है, राइट ना। स्ट्रक्चर दिया तो है उसने, मगर एक्सप्लेन सही से ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लिगेंड जो है वो ठीक से क्लासीफाई नहीं किया, हम लोग को वो तो बोला उसने लो स्पिन हाई स्पिन बता, वो भी ठीक से क्लासीफाई नहीं कर पाया उसने। एक्चुअल में लिगेंड के बारे में बात ही नहीं किया उसने कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, वो तो हम लोग को आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मालूम पड़ेगा। बट हम लोग को इसने नहीं बताया कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम लोग उसको क्लासीफाई कर पाएंगे। समझे हम लोग को।
तो लिगेंड के बारे में उसने जल्दी से क्लासीफाई नहीं किया। अजम्पशंस पे, एक्सपेरिमेंट पे कोई काम नहीं किया। ज्यादातर इसके जो पोस्टुलेट है वो क्या है, अजम्पशंस है, मतलब उसने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन या प्रूफ नहीं किया है, तो उसके से बहुत सारी मिस्टेक निकली इसने, प्रैक्टिकली नहीं किया। इसने क्या किया, ज्यादातर चीजें क्या है, अजम्पशंस है, इसलिए ये इसकी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम में आता है, ड्रॉबैक में आ जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के बारे में बात किया क्या, अभी हमने देखा कहीं पे स्टेबिलिटी की बात किया क्या, नहीं। इट डज नॉट एक्सप्लेन या इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं किया या नहीं कर पाया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो उसने मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन किया है बेटा, बट मैग्नेटिक मोमेंट को भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब क्या होता है, इसमें एग्जैक्ट मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मतलब पैरामैग्नेटिक तो है, पैरा ही रहेगा, बट ये ऑब्जर्व किया है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो वेरी होता है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वेरी होता है, मतलब चेंज हो जाएगा, चेंज होता है, तो उसके बारे में इसने कुछ बताया नहीं, वीबीडी ने उसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो ये कुछ लिमिटेशंस है वीबीडी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जो आपको अगर एग्जाम में आया तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आपको 4 पॉइंट लिखा, मैंने आपको 6 पॉइंट दिया हो, आप ये लिमिटेशन अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, आप अपनी नोट्स बनाओ उसको कॉपी ये करके, है ना, पॉइंट को करके लिख के अपनी नोट्स बनाओ अपने ओन वर्ड में, जो मैंने बताया आपको। बुक में शायद हो सकता है थोड़ा बहुत अलग रहेगा, पर ये काफ़ी है, ये बहुत अच्छी नोट्स है, आप इसको यूज़ करो। और यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं अभी इसके बाद यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पर आपको एक टेबल का फॉर्मेट दूंगा, अगर नहीं भी दे पाया आपको तो आपको लास्ट ईयर की बुक में मिल जाएगा, आप किसी से भी लास्ट ईयर की बुक ले लीजिए, उसमें आपको टेबल मिल जाएगा, उसके जरिए आप ज्योमेट्री पता कर सकते हैं, राइट। अगर मैं वीडियो पे लगाना भूल जाऊँ, जब मैं इसको वीडियो को एडिट करूँगा तो लगाना भूल जाऊँ, तो प्लीज़ आप उसको लास्ट ईयर की बुक से ले लीजिए, या फिर आपको नेट पे भी मिल जाएगा, वीबीडी की ज्योमेट्री आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मेरे लेक्चर अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।